ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସେକ୍ସନରୁ ଅଲରେଡି ଆଧାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଛି, ଆପ୍ରୋଚେସର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍, କାର୍ଲୋଜରଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଛି ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟରୁ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ସରିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଆଜେଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଇଗୋସ୍କିଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 5th ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବେସିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ରେଡିନେସ୍, ମାଚୁରେସନ୍, ମୋଟିଭେସନ୍, ଟାସ୍କ ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ। ଏଥିରେ ଆମର ମୋଟ 30ଟା MCQ ଅଛି। ଯଦି 30ଟା MCQ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ବୁଲେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ମାନେ ଆନ୍ସର ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର MCQ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ରେଡିନେସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀଲି ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଭଲ କିନା ବୁଝନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ରେଡିନେସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀଲି ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା। କହିଲା ଯେଉଁ ରେଡିନେସ୍ ଟର୍ମଟା ଅଛି ସେଟା ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ? ପାଠ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ ରେଡିନେସ୍ ଟର୍ମଟା ଏଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା ଏଜ୍, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି କହିଲା ମାଚୁରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି କହୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ କହିବି ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡିନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ରେଡିନେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ରେଡି ହେଇଥିବ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇପାରିବ। ମାନେ କ'ଣ ରେଡି କେମିତି ନା ରେଡି ହେଇପାରିବ କେମିତି ନା ଫିଜିକାଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇମୋସନାଲି। ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଥିବ ପିଲାଟି ପାଖରେ ତାହେଲେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡିନେସ୍। ତ ସେଇଟା ରେଡିନେସ୍ର ମିନିଂ ହିଁ ସେଇଟା, ରେଡି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପିଲାଟି ଫିଜିକାଲି ରେଡି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ଷକର ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବ କି? ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ସେ ରେଡି ହେଇଥିବା ଦରକାର କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସର ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଇମୋସନାଲି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ଦରକାର କି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ? ଏଜ୍, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମାଚୁରେସନ୍, ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପିଲାଟେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ କୋଉଟା ହେବ ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ସି, ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍। ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ କହିଲା କି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ରେଡିନେସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀଲି ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍। ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ରେଡିନେସ୍ ଟର୍ମଟି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ? ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍। ରେଡିନେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିକ୍ସ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ପିଲାଟିର ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ସେ କ'ଣ ନା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେ ତାକୁ ଏନଗେଜ୍ କରିକି ରଖିବ। ଆମେ କ'ଣ 6 ମାସ କି ବର୍ଷକର 1.5 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ ଯିବା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ରେଡିନେସ୍ ମାନେ ଫିଜିକାଲି, ମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲି ମାନେ ପିଲାଟି ଫିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ପାଠ ପଢ଼ିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କହିଲା which psychologist emphasized the importance of readiness in learning। ଏଇଟା ଅଛି ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ସେ କହୁଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରେସରାଇଜ କରିଥିଲେ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରେଡିନେସକୁ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜିନ୍ ପିଆଜେ, B.F. ସ୍କିନର, ଏଡୱାର୍ଡ ଥଣ୍ଡାଇକ୍, ୟା ଫିର ଅପସନ୍ ଡି ଜନ୍ ଡି। ସିଏ ସିଧା ସିଧା ପଚାରିଲା କି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ରେଡିନେସକୁ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରେଡିନେସକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଏଡୱାର୍ଡ ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ବା ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ବା E.L. ଥଣ୍ଡାଇକ୍। ବୁଝିଲା? ତ ଯେତେବେଳେ ଇ ଥଣ୍ଡାଇକ୍ କଥା ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି, ଟିକେ ଖାଲି ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି MCQ ଅଛି, 30ଟା MCQ ଆମର ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଚାରି ଦେଇଛି ଆମେ ବେସିକ୍ ସିଟିଏଟ୍ରେ ପଚାରେ କି ଏଜୁକେସନ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ସାଇକୋଲୋଜି କିଏ? ତ ଯଦି ସର୍ଟ ନୋଟ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଖାତା ପେନ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ଏବଂ ସେ ଆନିମଲଙ୍କ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆମେରିକାନ ଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ ଆମେରିକାନ। ପଚାରି ଦେଇଥାଏ ସିଟିଏଟ୍ ଓଟିଟିରେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବାକି ଆଧାରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ କହିପାରୁନି, ବଟ୍ ମନେ ରଖିଥାଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ସାଇକୋଲୋଜି ଏବଂ ଇଏ ଆମେରିକାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା SR ଦେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ବଣ୍ଡର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟା ଇଏ ଦେଇଥିଲେ। SR ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇଏ ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ ରହୁଛି ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ଆର୍ ହେଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସ। ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ କାମ କରିବା। ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଆଗରେ ଯଦି ଚକୋଲେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟିମୁଲସ୍। ଏବଂ ଯଦି ନେଇ ଆସିଲା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଏଟା କୁହନ୍ତି ରେସ୍ପନ୍ସ। ଏଟା କୁହନ୍ତି ରେସ୍ପନ୍ସ। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା E.L. ଥଣ୍ଡାଇକ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ବି ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଥିଓରି ବି ଦେଇଥିଲେ କି E.L. ଥଣ୍ଡାଇକ୍। ବୁଝିଲା? ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଥିଓରି ବି ଦେଇଥିଲେ କି ଖାତା ନୋଟ୍ ଯଦି ବନଉଛ ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍। ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଦେଇଥିଲେ ବି କିଏ? ମେଥଡ଼ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା E.L. ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା?
ट्राए ट्राए एटी ट्रायल एंड एरर रे ट्रायर मीनिंग कोन गोटे देखु सी जो एक्सपेरिमेंट करथिले से गोटे बॉक्स भीतर का रखिले गोटे बिले को रख देथिले ए गोटे बिले को रखी देथिले बुझिले तो बाहर गोटे माछ थई देथिले तो ता भीतर गोटे लिभरटे थिला से कोन ना बिलेई रो चारियाडे बुला माछ ताको भोक लागुची खाया पे तो से कोन कला भोकटा तार ला कोन ना स्टिमुलस ला तो तेणु से बाहर पे चेष्टा कला याड साइड हाथ गोड़ मारला और जेतले थरे देखला कोन ना लिभर जिमि गोड़ बाजुची गेटटा खोल जाउ तो सेणु से आसी माछ खाइदेला पुणी ताको बंद करदेले पुणी एबला कर पुणी थर बाजिगला पुणी तापर से जानिगला धीरे धीरे जानिगला तो जेतले डायरेक्ट बंद कर दोले से डायरेक्ट जे कोन ना लिभरटा प्रेस कर दोला लिभर प्रेस कर देला कोन भारी आसी की माछटा खाइदेला तो एटा कोन होला ना ट्रायल ट्रायल करी एरर को डिक्रीज करो तो येन थंडा भी कौन कहते पिला को ट्रायल करिया को दियो से निजे ट्रायल करी एरर रु निज एरर रु शिखिबो एटा होला ट्रायल एंड एरर मेथड जेते ट्राई करिवो से देखो ना भूल होबार चांस टा डिक्रीज हेइका जाइता है क्वेश्चन नंबर 3 को जिया आशा करूची नोट टे बने दियो क्वेश्चन नंबर 3 कहला मैच्योरेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज देखंतु भलो किना पूरा क्लास शेष पर्यंत देखंतु पूरा क्लियर हो जिवो एतिर हम जहां भी गोटे मार दी मार क्वेश्चन अछि आपण माने करि परिबे मैच्योरेशन को केमिति हम डिस्क्राइब करि परिया एक्वायरिंग न्यू स्किल्स थ्रू टीचिंग बी कौची नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑप्शन सी कौची एक्सटर्नल मोटिवेशन ऑप्शन डी कौची क्लासरूम लर्निंग को मैच्योरेशन कोडा आंसर कोन को तो देखो मैच्योरेशन हम साधारणतः कथा देखो पिलाटी मैच्योर मीन्स कोन ना मैच्योर मीन्स हला नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैच्योरेशन मीनिंग टा मन रखुन सब बेले नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम मैच्योरेशन हम जबरदस्ती गोटे पिलाटे पाखरे देई परिबा नाही तार एज हिसाब रे तार नेचुरली ग्रोथ हो एवं डेवलपमेंट हो सेटा कहते मैच्योरेशन किछि पिला थांती बड़ हो जाती किंतु बिहेवियर कोन ना छोट छुआ भलिया थाए ताको कहते मैच्योरेशन आसीनी तो जेतो मैच्योरेशन आसीनी ताको हम ताले लॉ ऑफ रेडीनेस ता पाखरे नाही जेतो लॉ ऑफ रेडीनेस नाही से कोन ना प्रिपेयर हे परिबो नाही पाठ पढा को माने कोन पढी परिबो नाही सेटा कहते मैच्योरेशन तो मैच्योरेशन गोटे बिग रोल प्ले करे कारे पिलार एजुकेशन आशा करूची बुझी पारते मैच्योरेशन मींस नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैच्योरेशन मींस नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो कौन कहला मैच्योरेशन ना मैच्योरेशन रेफर्स टू द नेचुरल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ पिलाटी कोन फिजिकली ग्रोथ हिता दरकार एवं मेंटली ग्रोथ हिता दरकार दैट अकर्स विथ द एज सहित एटा हेइथाय बट किछि पिलांगर कोन हेइ नेता टी लेट होय क्वेश्चन नंबर 4 कहला व्हिच कंडीशन इज नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग आको भितरु को कंडीशन दरकार नुहे बा एसेंशियल नुह इफेक्टिव लर्निंग पाए इफेक्टिव लर्निंग मीन्स जो लर्निंग रो कोन ना पिला किछि गेन करे पिला किछि शिखि थाए रेडीनेस हाई आईक्यू मोटिवेशन एंड मैच्योरेशन को ऑप्शन ए कहछि रेडीनेस बी कहछि हाई आईक्यू ऑप्शन सी कहछि मोटिवेशन एंड ऑप्शन डी कहछि मैच्योरेशन इफेक्टिव लर्निंग बाय आ भितर कोटा आवश्यक नुहे देखो लॉ ऑफ रेडीनेस एटा दरकार पिलार रेडीनेस हिथा दरकार मोटिवेशन पिला पाकर मोटिवेशन थिबा दरकार पाठ पढिया पे एवं मैच्योरेशन हमें जस्ट डिस्कशन करके आसिले पिलाटी कोन मैच्योर एनफ हिथा दरकार टू स्टडी बट हाई आईक्यू ए टर्म टा भूल हाई आईक्यू पिला पाकर सेमित किछि न हाई आईक्यू कोन पिलार एज सहित बढ़ी थाए तो हाई आईक्यू एठी दरकार नाही जेतले हमें क्लास 1 जेतले पिला एडमिशन करन सेठी कोन 8 क्लास र पाठ पढिया ना तो एठी हाई आईक्यू रो कोनोसी आवश्यकता नाही तो क्लास 1 जेतले पढिबो से क्लास 1 रो पाठ ही पढिबो तो ता हिसाब रे कोन ना ओ आ हला एबीसीडी हला 1 2 3 हला एवडा को से पाठ पढिबो बुझिला आशा करछु बुझि पाता अच्छा आईक्यू रो फार्मूला उडा अछि आईक्यू रो फार्मूला के बाहर करथले को बिने के बाहर करथले बिने साइमन मन रखता आईक्यू रो फार्मूला के बाहर करथले एटा पचारे शॉर्ट क्वेश्चन पचारे बिने एंड साइमन ये बाहर करथले कोन ना आईक्यू रो फार्मूला ये देथिले मन रखता शॉर्ट क्वेश्चन पचारे सीटेट रे बहुत थर पचारछि ओटीटी रे पचारछि तो हाई आईक्यू रो फार्मूला देथिले बिने एंड साइमन अच्छा आईक्यू रो फार्मूला कोन ना मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 अच्छा मेंटल एज कोन क्रोनोलॉजिकल एज कोन गोटे पिला को जदी 10 वर्ष गोटे पिला को जदी 10 वर्ष बट से 12 वर्ष रो पिला भलिया बिहेव करूजी तो ए 10 वर्ष ला कोन ना तार क्रोनोलॉजिकल एज आ मेंटल एज ता केते ना 12 वर्ष भलिया बिहेव करूजी तो मेंटल एज ता हला 12 तो आईक्यू तार केते हबो ना 12/10 इनटू 100 12/10 इनटू 100 यदि काटिबा एले 10 केते हला ना 120 तार आईक्यू केते हला ना 120 आईक्यू हला 120 मन रखता एटा खाली शॉर्ट नोट खाली बनै रखि दिथा एडिशनल खाली इंफॉर्मेशन दिगटे तो हाई आईक्यू कहीं होनी ना व्हाइल आईक्यू हेल्प्स कोन इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन आईक्यू टा नेसेसरी कंडीशन नो बट रेडीनेस मैच्योरेशन एंड मोटिवेशन आर हाईली
एसेंशियल एमाने कोन दरकार पिलाटीर पाठ पढ़िया पई बा जेकोसी पिलार पाठ पढ़िया पई कोन थिया दरकार ना रेडीनेस थिया दरकार मोटिवेशन थिया दरकार मैच्योरेशन थिया दरकार आईक्यू इज नॉट एसेंशियल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिबा जति अपन क्लास भल लागतो ताले गोटे लाइक करियो चैनल को सब्सक्राइब करियो भूलिबेनी क्वेश्चन नंबर 5 कहला कोन ना व्हिच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज स्ट्रॉन्गर इन यंग चिल्ड्रन मान पाखरे को टाइप रो मोटिवेशन स्ट्रॉन्गर देखा जाए बा अधिक परिमाण रे देखा जाए ऑप्शन ए कहला इंट्रिंसिक ऑप्शन बी कहला एक्सट्रिंसिक ऑप्शन सी कहला एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शन डी कहला नेगेटिव कौन पिला को आंसर ये भूल पड़ी जाइए आंसर पड़ी आसी आंसर हम कौन ना एक्सट्रिंसिक कह दूँ आंसर होचे एक्सट्रिंसिक अच्छा इंट्रिंसिक माने कौन एक्सट्रिंसिक माने कौन इंट्रिंसिक है जो मोटिवेशन टा आम भीतर आसे कहते इंट्रिंसिक आउ एक्सट्रिंसिक कौन ना जना पड़े जो मोटिवेशन आम कौन ना बाहर आसे सेटा कहते एक्सट्रिंसिक भीतर आसे बाहर आसे कौन इंट्रिंसिक है कौन ना तुम मैंने जमी क्लास देखुच कहीं क्लास देखुच कि तुम मान भर गोटे कौन माने भीतर गोटे मोटिवेशन आसी कि ना मु प्रिलिमिनारी क्लियर कर माने मते मेन क्लियर करा पड़ो चाकरी इंट्रिंसिक कौन होची ना चाकरी रोची मोटिवेशन टा रोची कौन चाकरी मेन क्वालिफाई करगले चाकरी पाइबी एक्सट्रिंसिक टा कौन जोटा कि देखा जाए छुआ मान भीतर कौन ना जी तू यहाँ पढ़ीदेबू मुझे बाहर बुलिया नेबी यही पाठटा पढ़ीदे तो कौन चॉकलेट देवी जेकोसी रिवार्ड है एक्सट्रिंसिक रोची कौन ना रिवार्ड आउ कौन आसो ना पनिशमेंट रिवार्ड पनिशमेंट ये सब हूँ कौन प्राइज प्राइज कथा देखा ये सब हूँ कौन ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये सब हूँ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन ना भीतर आसी थाए तेणु को टाइप मोटिवेशन स्ट्रॉन्गर पिला मध्य थाए ना एक्सट्रिंसिक छोट छुआ मान भीतर कौन थाए ना अधिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थाए मन रख पिला छोट छुआ भीतर कौन थाए ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अधिक देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 कहला व्हाट हेल्प्स टू डेवलप रेडीनेस इन चिल्ड्रेन छुआ व्हाट हेल्प्स टू डेवलप रेडीनेस इन चिल्ड्रेन छुआ भीतर रेडीनेस को डेवलप करने किए हेल्प करता है छुआ मान भीतर रेडीनेस को डेवलप करने किए हेल्प करता है पनिशमेंट ऑप्शन बी कहला कॉम्प्लेक्स टैक्स ऑप्शन सी कहला एज एप्रोप्रिएट मटेरियल या फिर ऑप्शन डी पीयर प्रेशर देख सब बेले पेडागोजी जोटा नेगेटिव टर्म ताको काटी बाहर कर दो जदि गोटे सटरी कौन जदि क्वेश्चन अच्छी पॉजिटिव जदि क्वेश्चन अच्छी पॉजिटिव ये क्वेश्चन पॉजिटिव अच्छी किमी जानिया पॉजिटिव ना किसी भाव में नो कि नॉट ना जदि नो कि नॉट नथिबो ताले से क्वेश्चन को आम धरिया पॉजिटिव बोली धरिया एटा कोन धरिया ना पॉजिटिव धरिया नथिबो जदि नथिबो ताको पॉजिटिव धरिया आ जे थिबो ताको नेगेटिव धरिया तो एठी तो नाही नो कि नॉट नाही तेणु क्वेश्चन कौन आसो ना पॉजिटिव रे आसो एतर क्वेश्चन पॉजिटिव पचारे नेगेटिव जोड़ा थो ताको काटी दो नेगेटिव टा काटी दो माने नेगेटिव टा आंसर हो नेगेटिव टा आंसर हो तार ठीक उल्टा भाइस वर्सा हो जेतबे क्वेश्चन नेगेटिव रे थिबो नो नॉट रे पचारि थिबो जोटा पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव ऑप्शन थिबो सेटा को ओके कर दो बा सेटा को ठीक हो एठी देखो नेगेटिव की होची ना पनिशमेंट ये गोटे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स टैक्स ये भी गोटे नेगेटिव पीयर प्रेशर ये भी गोटे नेगेटिव टर्म तेणु पॉजिटिव टर्म किए अच्छी ना ए एप्रोप्रिएट मटेरियल कौन ना हु व्हाट हेल्प्स टू डेवलप रेडीनेस इन चिल्ड्रेन को मध्य रेडीनेस पाठ पढ़ाई रेडीनेस बढ़ाइबार किए हेल्प करता है ना एज एप्रोप्रिएट मटेरियल क्लास 1 जदि कि क्लास 5 रो छुआ को हिसाब से बयस हिसाब से क्लास हिसाब से पाठ दिया हो ना कि क्लास 5 रो पिला को मु क्लास 10 रो पिला को पाठ देदेवी से कर पनिशमेंट देले केबे भी लॉ ऑफ रेडीनेस हे न थाए कॉम्प्लेक्स टैक्स देले लाभ कौन से तो कि जानि परिबोनी से नहीं छुआ सब कौन कर दियंती गोटे गोटे वर्ष गोटे गोटे क्लास रखी दियंती मन पड़े सांग माने भी आप मानकर रही गोटे अष्टम गोटे गोटे रखी देवे 7th क्लास रखी दियंती 10th क्लास रखी दियंती कहीं ना तार रेडी है ना एज एप्रोप्रिएट मटेरियल ताको मिली ना बुझिपाल कम्प्लीट टैक्स देदेले कि पनिशमेंट देदेले कि पीयर प्रेशर हेले से आगू पड़ेबो कि ना ता एज हिसाब से ताको जदि एप्रोप्रिएट मटेरियल दबा से कौन आगू को जाई बुझिला आशा करछि बुझी पारथियो क्वेश्चन नंबर 7 कहला कौन मैच्योरेशन इज आम टिके पूर्व क्लास पढ़िले कि मैच्योरेशन कौन लर्न बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट फैक्टर सी कहला ए बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर ऑप्शन डी ए टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट माने कौन गोटे वन टाइप ऑफ पछरु कौन सपोर्ट बा प्रेशर गोटे माने दिया जाए जोटा कौन पिला को हेल्प करता है मैच्योरेशन कौन ना मैच्योरेशन होची गोटे कौन ना बायोलॉजिकल प्रोसेस ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को कहा जाए नेचुरल ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को कहा जाए टिके पूर्व कहली नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कहा जाए कौन ना मैच्योरेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कहा जाए कौन ना मैच्योरेशन होची ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बा नेचुरल ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को कहा जाए मैच्योरेशन
क्वेश्चन नंबर 8 कहला कौन ना मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विदिन द लर्नर भीतर आसे जोटा एबे टिके पूर्व बुझेली जोटा जो मोटिवेशनटा पिला को पाठ पढ़िया ପାଇଁ भीतर आसे सेटा कौन ना एक्सटर्नल ना एक्सट्रिंसिक ना फिजिकल ना इंट्रिंसिक ऑप्शन टी कहूचे इंट्रिंसिक कोटा जो मोटिवेशनटा पिला को कौन भीतर ड्राइव करे कि चल पाठ पढ़ सेटा कोटा हबो देखो एडी एक्सटर्नल जहा एक्सट्रिंसिक भी से तेणु ऑप्शन दीटा कटिगला जोटा भीतर आसे एटा एक्सटर्नल माने बाहर एक्सट्रिंसिक माने भी बाहर फिजिकल माने किछि नाही एठी रिलेवेंट नुहे ऑप्शन फिजिकल ऑप्शन एठी रिलेवेंट नुहे तेणु इंट्रिंसिक जोटा भीतर आसला सेटा होछि कोन ना इंट्रिंसिक पिला माने लास्ट पर्यंत देखो एथि पई कहूछि कि जहाँ भी टिके पढ़छो एठी भी कोन रिवीजन हो जाउछि रिवीजन हैला माने वंस तमर कोन हैला फंडामेंटल क्लियर हैगला कांसेप्ट क्लियर हैगला तो तापर जहाँ भी जेते हार्ड लेवल क्वेश्चन करो कि एलटीआर जहाँ भी मेन जहाँ भी हार्ड क्वेश्चन आसु कोन हो इजिली तुमको कोन मन पड़ जाओ संगे संगे मन पड़ जाओ कि हां पढ़ी आगु बुझला लास्ट पर्यंत देखो भले कि कांसेप्ट क्लियर होगी जाओ कि जदि पारछो 1.5 रे कि 2 रे देखो वीडियो को देखो किछि ना किंतु क्लास टा पूरा करी कांसेप्ट क्लियर होगी जाओ अच्छा ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 8 कहूची कोन क्वेश्चन नंबर 8 कहूची मोटिवेशन दैट कम्स अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 जिबा ए चाइल्ड बिगिन्स टू वॉक ओनली आफ्टर सर्टेन मसल्स डेवलप दिस इज एन एग्जांपल छुआटी चलिया को आरंभ करे केतबेले ना जेतबेले तार किछि मसल्स कोन ना डेवलप हो जाए सेटा को कोन कोन सेटा बडा कार एग्जांपल को रेडीनेस या फिर मोटिवेशन लर्निंग या फिर मैच्योरेशन को कोन है पिलाटा मैच्योरेशन आ पिला कोन कहे ना मैच्योरेशन तार कोन फिजिकल ग्रोथ एवं कोन है डेवलपमेंट को कोन दे मैच्योरेशन कोन दे पूर्व टिके पढ़ी के आसले तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी सेटा गोटे तो आंसर आसीबो कोन ना मैच्योरेशन कोन ना दिस शोज फिजिकल मैच्योरेशन बिफोर स्किल डेवलपमेंट तेणु आम छुआ कौन करती छोट छुआ आम कौन चॉकलेट दे दे कि पेनसिल दे दे से लिखिपर ना तार फिंगर जो मसल स्ट्रंग होपर से लिखिपर कि फिंगर जो गोड़र मसल स्ट्रंग है चली पाला धीरे धीरे ग्रोथ डेवलपमेंट कौन प्रोसेस बाय प्रोसेस जाए क्वेश्चन नंबर 10 को जा व्हिच फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड टू लर्न टू राइट को फैक्टर भीतर इंपोर्टेंट रही गोटे छुआटे लिखिया जोड़ा कि लिखला बेले तार को इंपोर्टेंट फैक्टरटा इंपोर्टेंट रहबो ए कहला पेरेंटल प्रेशर ऑप्शन बी कहला फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ फिंगर्स ऑप्शन सी कहला गुड स्कूल या फिर ऑप्शन डी कहला हाई इंटेलिजेंस इजी क्वेश्चन जस्ट पूर्व बुझेली पेरेंटल प्रेशर पकई देले ता हातर मसल कोन हेजिवो गुड स्कूल दे देले तार हेजिवो कि हाई इंटेलिजेंस दे देले हेजिवो कि ना ऑप्शन बी फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ फिंगर ता हाथ आंगुली जतले आंगुल मसल जतले स्ट्रांग हेजिवो से कोन हेजिवो ना लिखि पारिबो बुझला सहज लागुथो एइति सहज लागुथो कोन बुझी गलेनी बोली बुझी पारछ ना एबे इजी लागु सतो किंतु जतले एग्जाम दबो सेतले जानिबो जे केते इजी माने कांसेप्ट जति क्लियर थो केते इजी लागु क्वेश्चन नंबर 11 कहला ए मोटिवेटेड लर्नर कोन ऑलवेज लर्न्स फास्टर ऑप्शन बी कहला डज नॉट नीड ए टीचर ऑप्शन सी इज रेडी टू लर्न या फिर ऑप्शन डी हैज हाई आईक्यू कोन हो आंसर मोटिवेटेड लर्नर कोन हेता कोन थाई ता पाखरे ऑलवेज लर्न्स फास्टर एमिति किछि नाही मोटिवेशन जा पाकर थी से कौन सब शीघ्र पाठ पढ़ी दब भूल डज नॉट नीड ए टीचर ये भी भूल स्टूडेंट सब बेले टीचर को आवश्यकता करें ऑप्शन डी गला हाज आईक्यू तेणु आईक्यू एठी भी कौन ना ऑप्शन माने किसी भी दरकार ना तो इज रेडी टू लर्न मोटिवेटेड लर्नरटा कौन ना सब बेले पाठ पढ़िया जेकोसी परिस्थिति में पाठ पढ़िया रेडी थाए तेणु आप अनुरोध आपने कौन एलटीआर मेन देवाक जाऊँगी तेणु जेकोसी परिस्थिति में भी जहाँ भी परिस्थिति आसी जाऊ पाठ पढ़ा के छाड़ी जातु नहीं यही 1.5 मास 2 मास सबकि भूली जातु पूरा फोकस हो रुहतु पाठ पढ़ी जहाँ भी 1.5 मास भर जमी क्लियर करेंगे यही मोटिवेशन रहा दरकार क्वेश्चन नंबर 12 कहला कौन लर्निंग हैपेन्स बेस्ट व्हेन द लर्नर इज लर्निंगटा सब बेस्ट हुए से केतबेले ना जो स्टूडेंटा टायर्ड थाए ऑप्शन बी कहला फोर्स थाए ऑप्शन सी कहला रेडी थाए या फिर ऑप्शन डी आफ्रेड थाए ये आम कौन पढ़ुँ ना लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ुँ तो लॉ ऑफ रेडीनेस आंसर कौन आसो ना तो स्टूडेंटा रेडी थी तो लर्निंग हैपेन्स बेस्ट व्हेन द लर्नर इज रेडी टायर्ड थे कि पढ़ो फोर्स तक बाध्य कले पाठ पढ़ो आफ्रेड भयभीत थे पाठ पढ़ा ना व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी लर्निंग हैपेन्स द बेस्ट बुझे अच्छा ये देखा तो कौन ना लॉ ऑफ लर्निंग दीटा कौन दीटा थ्योरी देती लॉ ऑफ लर्निंग दीटा थ्योरी अच्छी गोटे हूँ कौन ना हूँ गोटे प्राइमरी थ्योरी गोटे हूँ प्राइमरी थ्योरी आउ गोटे हूँ सेकेंडरी थ्योरी हूँ सेकेंडरी थ्योरी प्राइमरी थ्योरी केतरा ना 3टा सेकेंडरी थ्योरी केतरा ना 8टा मन रखता लॉ ऑफ लर्निंग जदि पारुच गोटे खातार लिखि दे था पचारि दे पारे शॉर्ट क्वेश्चन
ल अफ लर्निंग कौन ना प्राइमरी तीनटा दीटा ल अफ लर्निंग होची दीटा 1 येला 2 पुनी प्राइमरी लर्निंग होची तीनटा सेकेंडरी लर्निंग होची 8टा तो सिलेबस रे तो देइनी एलाबोरेट करिकी तो मु कहूनी खाली एतिकी शॉर्ट क्वेश्चन मन रखा पुनी प्राइमरी ल अफ लर्निंग कौन होची ना ल अफ इफेक्ट ल अफ रेडीनेस ल अफ इफेक्ट खाता टी लिखि देथाओ इंपोर्टेंट टिके खाली पढ़ देकी जाई थाओ ल अफ इफेक्ट ल अफ रेडीनेस आउट होची ल अफ एक्सरसाइज रो माने व्यायाम नो लव एक्सरसाइज माने मींस कोन एटी ना प्रैक्टिस लव प्रैक्टिस बुझिला तो रेडीनेस कोन रेडीनेस होची कोन ना सोशली एवं मेंटली पिलाटी सोशली एवं मेंटली जतो प्रिपेयर हेतु से पाठ पढ़ी परियो एवं एक्सरसाइज रो मीनिंग एटी कोन ना प्रैक्टिस एक्सरसाइज मीनिंग होची प्रैक्टिस और सेकेंड रो होची 8टा मु कहूनी लेंदी हे जो खाली एती खाली मन रखतो तापर क्वेश्चन नंबर 12 गला क्वेश्चन नंबर 13 कहूची रेडीनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट रेडीनेस टी ल अफ रेडीनेस टा जो इन्फ्लुएंस प्रभावित होई थाए केवल जन को गोटे जिनस को छाड़ी कौन ऑप्शन भितर गोटे जिनस को छाड़ी कौन ऑप्शन ए होची एज ऑप्शन बी कहूची हेल्थ ऑप्शन सी कहूची फियर ऑप्शन डी कहूची डेवलपमेंट लेवल रेडीनेस आउट ऑप्शन ना क्वेश्चन भल कि बुझाओ रेडीनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल आ भितर चारिटा ऑप्शन भितर तीनटा सहित कौन ल अफ रेडीनेस टा इन्फ्लुएंस होता है बट जन एक्सेप्ट गोटे को छाड़ी गोटे ऑप्शन को छाड़ी देख ल अफ रेडीनेस एज रे होता है हेल्थ को हेल्थ रे भी होता है पिलाटी हेल्थ होता दरकार बा मेंटली स्ट्रांग होता दरकार डेवलपमेंटल लेवल पिलाटी कोन मैच्योरेशन आस्ते दरकार बुझिला किंतु फियर रेडीनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट फियर फियर थिले हे परिबो नाही बुझिला क्वेश्चन नंबर 14 इजी क्वेश्चन थिला सेतिले शीघ्र पढै छली मोटिवेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मोटिवेशन को हमें बढ़ाई पारिया केमिति ऑप्शन ए को रिपीटेटिव टीचिंग ऑप्शन बी को थ्रेड्स ऑप्शन सी गला एंगेजिंग एक्टिविटी या फिर ऑप्शन डी गला होमवर्क केमिति हमें बढ़ाई पारिया रिपीटेटिव टीचिंग अगेन नेगेटिव टर्म पळै आसिला थ्रेड नेगेटिव टर्म पळै आसिला होमवर्क नेगेटिव टर्म पळै आसिला यदि आमे गोटे छुआटी को एंगेज करबा एक्टिविटी तार एंगेज कर रखिबा ताले कोन तार मोटिवेशन टा बढ़ी पारे पाठ पढ़ा प्रति तार आग्रह बढ़ी पारे बा जे कोनोसी कार्य प्रति तार मोटिवेशन टा बा इच्छा शक्ति बढ़ी पारे सेटा कोनती मोटिवेशन बुझिला नेगेटिव टर्म रा काटि दबो आंसर आपा पाइ जो क्वेश्चन नंबर 14 कहला मोटिवेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय सॉरी सेटा तो गले क्वेश्चन नंबर 15 कहला कोन an example of extrinsic motivation is ऐसा तो इंट्रिंसिक पढ़िथिले एक्सट्रिंसिक रे कोन कहिथिले पनिशमेंट रिवार्ड ए सब होची कोन एक्सट्रिंसिक क्यूरियोसिटी ऑप्शन ए गला क्यूरियोसिटी ऑप्शन बी गला सेंस ऑफ प्राइड ऑप्शन सी गला इंटरेस्ट इन टॉपिक या फिर ऑप्शन डी गला प्राइज एक्सट्रिंसिक टा कोडा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टा कोडा जो मोटिवेशन टा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मींस कोन ना जो मोटिवेशन टा कोन ना बाहरु आसीते हमरो शरीर हम बॉडी भीतर नो बाहरु आसीते देखो क्यूरियोसिटी जानिबार इच्छा शक्ति टा कोन भीतर आस्ते सेंस ऑफ प्राइड गर्व अनुभव करिया एटा कोन भीतर आस्ते इंटरेस्ट इन टॉपिक ये भी भीतर आस्ते निज भीतर आस्ते बट प्राइज टा सब कोन ना एक्सटर्नल प्राइज हैला फियर हैला पनिशमेंट हैला लेखि रखि थाओ सब पनिशमेंट हैला बा रिवार्ड हैला ये सब कोन ए सब जिंस कोन ना एक्सट्रिंसिक बा एक्सटर्नल मोटिवेशन ने जाय क्वेश्चन नंबर 16 को जिवा क्वेश्चन नंबर 16 कला लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द टास्क इज लर्निंग टा सेतोले इफेक्टिव जेतोले टास्क टा कोन हेतै टास्क माने जो कार्यटा दिया जाय काम दिया जाय पिला बियॉन्ड द लर्नर्स कैपेसिटी टू इजी चैलेंजिंग बट अचीवेबल ऑप्शन डी हैला रिपीटेटिव ऑप्शन डी कोची कोन रिपीटेटिव को इजी क्वेश्चन को ट्राई करिया बे लर्निंग इज इफेक्टिव लर्निंग टा सेतोले फलप्रद हुए जेतोले टास्क कोन ना बियॉन्ड द लर्नर्स कैपेसिटी लर्नर कैपेसिटी दे बाहर यदि क्लास 3 छुआ को क्लास 5 रे पाठ देबी से होबो कि ता कैपेसिटी रो बाहर तनो एटा होबो नाही लर्निंग एटी हे परिबो ना इफेक्टिव हे परिबो नाही टू इजी हेले मध्ये इफेक्टिव हे परिबो नाही क्लास 10 नो पिला यदि क्लास 5 रो पाठ देबी से भी कहि जो टू इजी जो तनो सेटा भी इफेक्टिव हेला नै तापर ऑप्शन डी हला रिपीटेटिव नो ऑप्शन सी होची चैलेंजिंग हेतु दरकार बट अचीवेबल एवं अचीवेबल भी हेतु दरकार तो पिला कोन हो सेटा लॉ ऑफ सॉरी लर्निंग इज इफेक्टिव सेतबे हो बुझला आशा करू छी एपन तो देखुथिबे क्लास यदि भल लागुतो लाइक करिवे चैनल को टे सब्सक्राइब करिवे काना बहुत परिश्रम लागु छै सब काम माने क्वेश्चन करि के ताको पीडीएफ करि के रेकॉर्ड करि के अपलोड करिया पे आपनकर कोन सब्सक्राइब हेले मते टिके इंस्पायर लागु छै आउरी वीडियो करू छी एवं आपनकर आपरे मध्ये पेडागु संपूर्ण भाबे सारिबी पेडागु सला पर इंग्लिश एवं हिस्ट्री मध्ये क्लास करिवि टेंशन नउतने क्लास सहित चैनल सहित जुड़े ही रहंतु सब सारिया हला
क्वेश्चन नंबर 17 कहला 17 नंबर क्वेश्चन 30 टा टोटल मल्टीपल चॉइस करबा आमे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिवो आज क्लास टोटल यूनिट 1 सरी की जिवो बुझिला 4टा क्लास आगु सरी छि एटा सरीला माने यूनिट 1 सरी जिवो तापर देखिया 17 कहला ए मेथड दैट बिल्ड्स मोटिवेशन इन क्लास इज को मेथड रे जो रे हमें कोन क्लासरूम रे मोटिवेशन कोन बिल्ड करथा सेटा कोन कहते मोटिवेशन बिल्ड करथा क्लासरूम रे से मेथड टा कोन कहते ऑप्शन ए कहला रोट लर्निंग ऑप्शन बी कहला मेमोराइजिंग ऑप्शन सी कहला इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या फिर ऑप्शन डी कहला पनिशमेंट कौन हम को देख को रोट लर्निंग अगेन कौन नेगेटिव टर्म घोषिबा मन रखिया ए सब पेडागोजी रे कौन ना नेगेटिव टर्म मेमोराइजिंग ये भी से मन रखिबा ये भी नेगेटिव टर्म ऑप्शन डी पनिशमेंट ये भी नेगेटिव टर्म तेणु इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो थे पिला कौन एक्टिवली एंगेज हो कंस्ट्रक्ट नॉलेज कंस्ट्रक्ट करियो निजे साइंटिफिक मेथड रे तो करिवो सेरा कौन डिडक्टिव मेथड यूज करिवो से जगह कौन मोटिवेशन टा बिल्ड होता है क्लासरूम रे मोटिवेशन टा बिल्ड होता है बा एग्जांपल रूल को जीवो सेटा कहंती कौन ना मोटिवेशन टा अधिक बिल्ड होता है छुआ मध्य पिलाटे मध्य होता है कौतूहल जात होता है तो से कौन होता है पाठ पढ़िया को बेसी इच्छा करता है क्वेश्चन नंबर 18 कहला रेडीनेस मीन्स कौन रेडीनेस अगेन बहुत थोड़ा बुझी सारी बीइंग मैच्योर ऑप्शन बी कहला बीइंग प्रिपेयर्ड इमोशनली फिजिकली एंड मेंटली ऑप्शन सी कहला हैविंग स्किल्स ऑप्शन डी कहला डूइंग होमवर्क रेडीनेस लॉ ऑफ रेडीनेस बुझला बेले मु बुझेछि स्टार्टिंग रु कोन हो रेडीनेस मीनिंग है कौन बीइंग मैच्योर केतळ हो मैच्योर टा बिनु ऑप्शन सी कहला हैविंग स्किल डेवलप होबा पर स्किल कौन डेवलप पछर हो मैच्योर भी पछर हो डूइंग होमवर्क किमित हो जतो रेडीनेस नाही होमवर्क केतळा करिवो आगे रेडीनेस आसीबो तापर होमवर्क करिवो तेणु ऑप्शन बी इज करेक्ट रेडीनेस मीन्स कौन बीइंग प्रिपेयर्ड इमोशनली पिलाटी कौन इमोशनली रेडी होता दरकार फिजिकली रेडी होता दरकार तब कौन फिंगर मसल्स गुड़ा रेडी होता दरकार पाठ पढ़िया पे एवं मेंटाली भी से स्ट्रांग होता दरकार पिला के पिलार कौन मेंटल स्ट्रांग होता दरकार ना कि आम जब माने जहाँ गोटे मेंटाल टे स्टेबल अनस्टेबल छुआ जानी पाठ पढ़िया पढ़ी पारे कि पढ़ी पारे ना तो रेडीनेस मीन्स बीइंग प्रिपेयर्ड इमोशनली टिके शॉर्ट नोट खाली बनई दियो रेडीनेस लेखि हाइपेन मार दियो बीइंग प्रिपेयर्ड इमोशनली फिजिकली एंड मेंटली जदि न लिखि पार तो तर भितर स्क्रीनशॉट मारी नहीं जाओ नोट बनई दो पर थर थर लिख दो थर कर मन रही क्वेश्चन नंबर 19 को जीवा क्वेश्चन नंबर 19 कहला कौन व्हिच इज ए बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ लर्निंग आ भितर कोटा गोटे बायोलॉजिकल कंडीशन लर्निंग रो पाठ पढ़ार आ भितर कोटा गोटे बायोलॉजिकल कंडीशन ऑप्शन ए कहला मोटिवेशन ऑप्शन बी कहला डिसिप्लिन ऑप्शन सी कहला मैच्योरेशन आ फिर ऑप्शन डी कहला प्रैक्टिस और ऑप्शन डी कहला प्रैक्टिस डबल डबल है जे देख जिते मैच्योरेशन सॉरी बायोलॉजिकल कथा कहूँ बायोलॉजिकल कौन कही ना मैच्योरेशन टर्मटा सब क्या तो जोड़ी रही ना बायोलॉजिकल टर्म सहित जोड़ी थाए बुझेगा मैच्योरेशन कौन ना बायोलॉजी टर्म सहित जोड़ी थाए मैच्योरेशन केतला आसे ना फिजिकली मेंटाली और सेटा रेडीनेस फिजिकली मेंटाली और इमोशनली जो प्रिपेयर होता है पिलाटा कहते रेडी होता है पाठ पढ़ाई बट मैच्योरेशन कौन ना बायोलॉजिकल टर्म यहाँ हूँ कौन ना ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को कही था क्या कही था ना ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को कही था गोटे पिलाटे थर ग्रोथ आउ डेवलपमेंट जब आसी थाए आम कौन कहती ना बायोलॉजी मैच्योरेशन आसी जाइए कहते बुझेगा क्वेश्चन नंबर 20 जीवा व्हिच इज नॉट ए मेथड ऑफ इंक्रीजिंग मोटिवेशन आ भितर कोटा गोटे मेथड नुह मोटिवेशन को इंक्रीज कराइबार आ भितर कोटा गोटे मेथड नुहे ऑप्शन ए कहला गिविंग फीडबैक ऑप्शन बी कहला यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑप्शन सी कहला ओवरलोडिंग होमवर्क या फिर ऑप्शन डी कहूँ कौन ना एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन कोटा गोटे मेथड नुहे मोटिवेशन इंक्रीज कराइबार कोटा गोटे मेथड नुहे देख गिविंग फीडबैक जिते पिला को आम फीडबैक दबा से कौन बेसी कौन रहा एनगेज हो क्लासरूम रे एनगेज हो आउ यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स आउरी इंटरेस्ट बढ़ो सी भी कौन एनगेज हो ओवरलोडिंग होमवर्क एटा हूँ भूल होमवर्क एटा हूँ कौन ओवरलोडिंग होमवर्क है मैंने नेगेटिव टर्म है तेणु एटा नुहे होमवर्क देदेले पिलार मोटिवेशन इंक्रीज हो भूल ऑप्शन डी कहला कौन ना एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन हाँ से जहाँ गिविंग फीडबैक रियल लाइफ एग्जांपल एवं एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन तीन टाक कौन एका अर्थ पिला को जिते पार्टिसिपेशन इनक्रीज कर रखे खाली जब टीचर आसिक पढ़ी देकी पलैब मुझे खाली पढ़ी देकी पलैबी तुम मैंने कौन मन रही कि सेमती बुझीपार कि मुझे कहूँ ना बारंबार नोट लिख टे नोट कर कि स्क्रीनशॉट नहीं जाओ पछर नोट करदेव तो ता द्वारा हम कौन ना मोटिवेशन टा बढ़ो जो पिला एक्टिवली एनगेज एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर डिडक्टिव मेथड पढ़ो रूल टू एग्जांपल जीव सॉरी एग्जांपल टू रूल को जीव तो से कौन ना तार एनकरेज हम पार्टिसिपेशन तार एनकरेज हम बढ़ बुझेगा
क्वेश्चन नंबर 21 को जी 21 कहला द लॉ ऑफ रेडीनेस वाज गिवन बाय फास्ट पढ़ी चली लॉ ऑफ रेडीनेस का का द्वारा दिया पावलोव थॉर्नडाइक स्किनर या फिर भाइकोस्की का द्वारा दिया लॉ ऑफ रेडीनेस दिया ईएल थॉर्नडाइक से कौन अमेरिकार जड़े साइकोलोजिस्ट एवं सी कौन करते कहुए फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलोजी लिखिद थॉर्नडाइक कौन कहुए फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलोजी एवं से कौन एनिमल इंटेलिजेंस उपर काम करते एनिमल इंटेलिजेंस उपर काम करते सब एनिमल को काम करते एमती को एनिमल नथिले एक्सपेरिमेंट करुनथिले से लास्ट कौन करते ना जो घरे रही रेंट रे रही से से घर कौन मूषा धरिकी एक्सपेरिमेंट करते जो घर मालिक देखला तो कौन कला घर तोड़देला विदा करदेला कहला जा पड़ा पागल हो ना कौन जहाँ धरचु कौन तापर से एनिमल उपर एक्सपेरिमेंट करछु तो कौन ना एनिमल इंटेलिजेंस उपर काम करते आउ फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलोजी कह जाए बुझेगा क्वेश्चन नंबर आशा कर बुझी पार्थिव एपन जब बुझी पार्थिव लाइक करियो गोटे चैनल को सब्सक्राइब करियो पिला माने क्वेश्चन नंबर 21 गला क्वेश्चन नंबर 21 गला ना हाँ क्वेश्चन नंबर 22 गला टास्क एंड मेथड्स मस्ट बी टास्क और मेथड कौन होइथवा दरकार रिजिड होइथवा दरकार बियॉन्ड चाइल्ड्स लेवल होइथवा दरकार या फिर ऑप्शन सी चाइल्ड सेंटर्ड होइथवा दरकार या फिर ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स होइथवा दरकार कौन बढिया होइथवा दरकार टास्क और मेथडटा रिजिड अगेन कौन नेगेटिव टर्म बियॉन्ड चाइल्ड्स लेवल चाइल्ड लेवल क्लास 3 रो पिला क्लास 5 रो पाठ देबे हो कि होबनी कॉम्प्लेक्स जदि सही एका कथा जो हार्ड प्रॉब्लम आनी देदी गोटे छुआ क्लास 3 रो छुआ क्लास 10 मैथ दे देबी से कर तेणु टास्क और मेथड कौन भाई होता दरकार ना चाइल्ड सेंटर्ड होता दरकार जहाँद्वारा कौन पिला निजे एक्टिवली एंगेज रहिबो एवं तार कौन नॉलेज गेन करियो बा नॉलेज को वृद्धि करियो क्वेश्चन नंबर 23 को देखिबा रेडीनेस भ्यारीज विथ रेडीनेस केमिति भ्यारी करे बा रेडीनेस भ्यारी केमिति करे इंटेलिजेंस सहित सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सहित एज एंड डेवलपमेंट सहित या फिर स्कूल फीस सहित रेडीनेसटा पिला धीर रेडीनेस टू लर्न केमिति बढ़ी थाए इंटेलिजेंस द्वारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस द्वारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस घर स्टेटस सहित पिलार पाठ पढ़ा कौन संपर्क ता तो हेले गरीब कौन आए दिन पेपर बाहरता रिक्शा चालक पु आईएएस पाईगला सफाई वाला झील नीट पाईगला तो सी तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सहित कौन भाव संपर्क ना लॉ ऑफ रेडीनेस स्कूल फीस सहित एगेन नुह इंटेलिजेंस सहित नुह कौन ना ऑप्शन सी एज एंड डेवलपमेंट सहित रेडीनेसटा कौन होता है ना एज एंड डेवलपमेंट सहित जड़ित होगी रही है बुझला एज सांगे सांगे डेवलपमेंट तार बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हेले पिलार कौन रेडीनेस आपे आपे आसी थाए बुझला धीरे धीरे पिलाटी कौन डाकी थाए पार्टी जो न खोली ताकू जब एबीसीडी डाक से डाक पार ना रेडीनेस आसी नथिबो तार मैच्योरेशन आसी नथिबो डेवलपमेंट हो नथिबो ग्रोथ हो नथिबो तार रेडीनेस कोड आसीबो धीरे धीरे पिलाटी डाक शिखिबो तापरे पेन चक खड़ी पेंसिल बा धरी शिखिबो लिखिबो धीरे ता हाथ को धरी ता माँ कौन ता बापा धरी कौन पेन लिखेबे स्लेट रे लिखेबे तो सेतବେଳେ ଯାଇକି डेवलपमेंट आसले मसल कौन स्ट्रांग हो गले एज सहित से कौन लॉ ऑफ रेडीनेस आसी थाए बुझला पिलाटी रेडी होता है कौन पाठ पढ़िया क्वेश्चन नंबर 24 देखिया इंट्रिंसिक मोटिवेशन लीड्स टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स आउ थे कहि दूची जोटा पिलार भितर आसी थाए से मोटिवेशन हेले कौन होता है रोट लर्निंग होता है ऑप्शन बी कहूँ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होता है ऑप्शन सी कहूँ लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होता है या फिर ऑप्शन डी डिपेंडेंसी ऑन रिवार्ड्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा द्वारा कौन होता है रोट लर्निंग एगेन नेगेटिव टर्म इंट्रिंसिक मोटिवेशन है रोट लर्निंग रो कौन चांस ना सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग भल भाई बुझी थाए ऑप्शन सी गला लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होता है डिपेंडेंसी ऑन रिवार्ड है कौन ना एक्सट्रिंसिक आसीगला तो आधार इंट्रिंसिक पचार ये तो भूल तो ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन आसिले कौन होता है ना पिलाटी धीरे लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होता है है पिलाटी तुम मैंने जमी कौन कर ना दिन राति एक कर पाठ पढ़ आशा करुँच दिन राति एक कर पाठ पढ़ कहीं तुम मान भर गोटे मोटिवेशन रही कौन ना एलटीआर मेन केमी क्वालिफाई कर तो आधार तुम मैंने बहुत समय पढ़ो तो लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग बुझला बहुत दिन जाए मन रहा क्वेश्चन नंबर 25 मैच्योरेशन इज इंपोर्टेंट फॉर मैच्योरेशन कहीं इंपोर्टेंट थाए मैच्योरेशन कहीं इंपोर्टेंट थाए टीचिंग पे मोरल डेवलपमेंट पे स्किल डेवलपमेंट पे या फिर इंटेलिजेंस पे को राइट आंसर कौन हम मैच्योरेशन इज इंपोर्टेंट फॉर टीचिंग ऑप्शन बी मोरल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट या फिर इंटेलिजेंस राइट आंसर कौन ऑप्शन सी स्किल डेवलपमेंट पाए मैच्योरेशन कहीं इंपोर्टेंट ना पिलाटीर स्किल डेवलपमेंट करिवारे मैच्योरेशन बहुत बड़ रोल प्ले करी थाए एगेन मैच्योरेशन मीन्स कौन ना बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कौन जाए ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट छुआटीर ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैच्योरेशन कह जब ग्रोथ और डेवलपमेंट न आसो तार छुआटीर स्किल डेवलपमेंट केमी हम टीचिंग तो छाड़ मोरल डेवलपमेंट छाड़ इंटेलिजेंस छाड़ जेपर्यंत स्किल डेवलपमेंट न होती
ये तीन टा जिनस भी ता देहरे आसीबो नाही। स्किल सब जेमिति कोन ना वाकिंग टॉकिंग कथा न कहि पाइले चाली न पाइले ता केमिति कोन जणे पाठ पढेबो तो कथा कोन ता कोथो डाक 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 कोन डाकियो डाकी पारियो कि राइटिंग तार हातर मसल जदी हेइ नथिबो तो स्ति केमिति लिखि पारियो कि लिखि पारियो नाही। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 कोन कहला ए लर्निंग टास्क शुड बी लर्निंग टास्क शुड बी लर्निंग टास्क ता केमिति हेबा दरकार बोरिंग रिजिड एज एप्रोप्रिएट या फिर टीचर सेंटर लर्निंग टास्क ता केमिति हेबा दरकार बोरिंग अगेन कोन नेगेटिव टर्म काटि दबा रिजिड ये भी नेगेटिव टर्म काटि दबा ऑप्शन डी कहूँ टीचर सेंटर हेले स्टूडेंट रो कोन हला सब स्टूडेंट सेंटर पाठ पढ़ाटा सब कौन होता दरकार स्टूडेंट सेंटर होता दरकार तो लर्निंग टास्क शुड बी कौन ना एज एप्रोप्रिएट आंसर कौन हो ना एज एप्रोप्रिएट अगेन मुझे एग्जांपल देवी क्लास 3 छुआ को कौन क्लास 3 पाठ ही दबा कहीं तार मैच्योरेशन से बड़ा आसी पाठ ही से पढ़ी पार ना कि क्लास 5 पाठ दबा बुझेगा तो लर्निंग टास्क शुड बी एज एप्रोप्रिएट बुझेगा आशा करुँच बुझीपार पे जो मैंने एपर्त देखुच बहुत बहुत धन्यवाद तुम भर कौन मोटिवेशन अच्छी एलटीआर मेन क्वालिफाई कर जब देखा क्वेश्चन नंबर 27 कौन कौन ना व्हिच टास्क एनहांसेस बढ़ाए रेडीनेस इन अर्ली चाइल्डहुड कौ टास्कटा जब छुआ को दबा ता देहरे रेडीनेसटा बढ़ी थाए छुआटा पाखे रेडीनेसटा को इनक्रीज करें कॉम्प्लेक्स पजल ऑप्शन बी कला फ्लैश कार्ड विथ कलर्स ऑप्शन सी कला एडल्ट डिस्कशन या फिर ऑप्शन डी लॉन्ग लेक्चर्स को इजी इजी क्वेश्चन देख कर एत बार तो पढ़ल मैंने कौन बहुत सारा बुझी पार्थो ये चैप्टर जहाँ भी क्वेश्चन पड़ो किसी झाड़ी आसवन एग्जाम जब फुल क्लास देखी कौन हम ना देख कॉम्प्लेक्स पजल देले इनक्रीज केमी हम लव रेडीनेस जब बयस सहित सामान न से इनक्रीज हम कि हम ऑप्शन डी सी कहला कौन एडल्ट डिस्कशन जब छोट छुआ पाखे बड़ पिला कथा कर लॉन्ग लेक्चर एगेन भूल तो ऑप्शन बी फ्लैश कार्ड विथ कलर छुआटार इंटरेस्ट बढ़ो कि पाठे छोट छुआ प्ले स्कूल छुआ को कौन देखा जाए रंग बेरंगर चित्र विभिन्न पशु पक्षी चित्र देखी पाठ पढ़ा कौन लव रेडीनेसटा आनती बुझेगा प्ले स्कूल जो पढ़ुवे बही देखिए तो केमी खाली रंग बेरंग चित्र आउ कि ना एनहांस करे बढ़ाए लव रेडीनेस को रेडीनेस को छुआ एर्ली चाइल्डहुड माने जोटा कौन 3 ରୁ 6 क्लास पिला क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 गला कौन वन इफेक्टिव मेथड टू मेंटेन मोटिवेशन इज मोटिवेशन को मेंटेन करने कोटा गोटे इफेक्टिव मेथड मोटिवेशन को मेंटेन करने या भर कोटा गोटे मेथड डिलेइंग फीडबैक फ्रिक्वेंट प्रेज इग्नोरिंग एफर्ट या फिर ऑप्शन डी मेमोराइजिंग फैक्ट्स डिलेइंग फीडबैक आम कौन कथा ना जब फीडबैक दबा कन्स्टांट फीडबैक दूसरा कंटिन्यूअस फीडबैक दूसरा पिलाटी तार कौन हो ना इनक्रीज तार मोटिवेशन कौन इनक्रीज हम तेणु ऑप्शन टा भूल डिलेइंग लेट कर कौन हम फ्रिक्वेंट प्रेज ऑप्शन सी कौन इग्नोरिंग एफर्ट एफर्ट माने कौन तार प्रयास जब कर क्वेश्चन सल्व करने किंतु क्वेश्चन टा सल्व हो पारि ना तथापि से टीचर रोल कौन ताकू साबास दवा कि हाँ पिलाटी चेष्टा कर भूल कर बट चेष्टा कर ऑप्शन सी कौन जब यहाँ भूल इग्नोरिंग इफेक्ट सॉरी एफर्ट को इग्नोर करवा ताले भी कौन भूल मोटिवेशन मेंटेन है केमी मोटिवेशन कौन हो डाउन हम मेमोराइजिंग फैक्ट्स मन रखापी छुआ कहवा कौन हो से भी मोटिवेशन डाउन हो ऑप्शन बी हूँ गोटे पॉजिटिव अच्छी जोटा कि फ्रिक्वेंट प्रेज जब पिलाटी आम कौन प्रेज कर चलुवा प्रेज मीन्स कौन ताको प्रशंसा कर चलुवा ताहले कौन तार मोटिवेशन कौन इनक्रीज हो जब ठीक कर साबासी दियो पिठी थापड़े दियो सब पिला क्लास मझे कौन ताको कह हाँ ये ठीक कर तार कौन मोटिवेशन इनक्रीज हो से नेक्स्ट क्लास कौन आहरी बढ़ी आसो ये सब रियल लाइफ सहित जो पेडागोजी तुम कौन कर मेंटेन कर चलो आंसर ठीक आसो क्वेश्चन नंबर 28 कौन कौन वन इफेक्टिव मेथड टू मेंटेन मोटिवेशन सॉरी ये तो कले क्वेश्चन नंबर 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज एग्जांपल ऑफ मैच्योरेशन ओवर लर्निंग व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ मैच्योरेशन ओवर लर्निंग को आ भीतर कोडा गोटे एग्जांपल कार मैच्योरेशन ओवर लर्निंग ऊपर एटा गोटे कार एग्जांपल राइडिंग ए साइकिल लर्निंग टू रीड लर्निंग टू स्पीक या फिर सॉल्विंग मैथ को मैच्योरेशन ओवर लर्निंग को बुझ चेष्टा कर राइट आंसर कौन हम ऑप्शन सी लर्निंग टू स्पीक देख ये कौन कहला क्वेश्चन भल कि बुझ से स्लाइड को आने देख ये कौन कहला ना मैच्योरेशन ओवर लर्निंग माने लर्निंग ठू अधिक कौन मैच्योरेशन हवा दरकार कोडा गोटे तार एग्जांपल राइडिंग ए साइकिल नु लर्निंग टू रीड नुहे लर्निंग टू स्पीक
ପିଲାଟି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କଥା କହିବ, ତାପରେ ସେ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ, ତାପରେ କ'ଣ ନା ହାତ ଫିଙ୍ଗର ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାଥ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ସ୍ପିକିଂ ଇଜ୍ ଲାର୍ଜଲି ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍। ପ୍ରଥମେ ପିଲା କ'ଣ କରେ, ଯେତିକି କାମ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ, ଫାଷ୍ଟ କଥା କୁହେ, କଥା କହିଲା ପରେ ରିଡ୍ କରିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ କ'ଣ ମ୍ୟାଥ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ ବା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ ତାପରେ ମ୍ୟାଥ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ। ବୁଝିଲା? କାହିଁକି ଟିକେ ଆଣିଲି ଜାଣିଲ, ସ୍ଲାଇଡକୁ ଆଣିଲି ଏଠି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲା? ମାଚୁରେସନ୍ ଓଭର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ପିଲା କିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ପିକ୍ କରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ବୁଝିଲା? ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଶା କରିବି ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହିଁ ମୋର କ'ଣ ମୋଟିଭେସନ୍ କି ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ବା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଟିଚର ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଟାସ୍କ ମୋଟିଭେସନ୍। ଟିଚରଟି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା ଟାସ୍କ ମୋଟିଭେସନକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ, ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ? ୟେଲିଂ ଆଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଗଲା ଗିଭିଂ ଇରିଲିଭାଣ୍ଟ ଟାସ୍କ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ରିଏଟିଂ କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ଅପସନ୍ ଡି କହୁଛି କ'ଣ ନା କମ୍ପେୟାରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ନେଗେଟିଭ ଟର୍ମ ଦେଖି କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ। ଦେଖ ୟେଲିଂ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲେଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଉଠି ମୋଟିଭେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭୁଲ। ଗିଭିଂ ଇରିଲିଭାଣ୍ଟ ଟାସ୍କ, ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ ଆସିକି କହିବେ କ'ଣ ନା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆସିକି ପଢ଼ାଇବେ ବା ଗ୍ଲୋବ ଦେଖିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ହେଇପାରିବ କି? ଗ୍ଲୋବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୋଉଠି ଆମେରିକା ଚିହ୍ନା, କୋଉଟା ରଷିଆ ଚିହ୍ନା, ହେବ କି? କି ଘାସ ବାଛିବାକୁ କହିଦେବେ କି ସ୍କୁଲ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ କହିବେ, ତାହେଲେ ହେଲା କ'ଣ ଇରିଲିଭାଣ୍ଟ ଟାସ୍କ, ଇଏ ବି ଭୁଲ। କମ୍ପେୟାରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଟିଚରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ପେଡାଗୋଜି ସବୁବେଳେ ମନା କରିଛି ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ କମ୍ପେୟାର କରିବ ନାହିଁ, ଖାସ କରିକି ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ କମ୍ପେୟାର କରିବ ନାହିଁ କି ଏ ପିଲା ଭଲ ଏ ପିଲା ଖରାପ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ରିଏଟିଂ କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସା ବା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ମୋଟିଭେସନଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଏଥିରୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେବଳ ଏଇ ରେଡିନେସ୍, ମୋଟିଭେସନ୍, ମାଚୁରେସନ୍, ଟାସ୍କ ଏଇସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପେଡାଗୋଜିର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ସବୁ ପେଡାଗୋଜି ସାରିବା ଏଲ୍ଟିଆର ମେନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ଇଂଲିଶ କରିବା, ତାପରେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କରିବା ପାରାଲାଲ କରିବା, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବ।